Hello everyone. This is today the Hindu newspaper analysis session for UPSC Civil Services examination. Today we will discuss many three issues. The first issue is Kakinada will be green hydrogen valley of India. Second issue is Chinese drone made a provocative fight over South China Sea. Third issue is related to Pax Silica initiative of US. So let's discuss all the issues in detail. In this session, we will discuss about green hydrogen and green ammonia in India. How these are transforming energy for a sustainable future. Lecture is important for GS paper 2, GS paper 3 for prelims and for mains. Andhra Pradesh Chief Minister has declared Kakinada as the green hydrogen valley of India. The first production of green ammonia is expected by 2027. Recently, Andhra Pradesh Chief Minister ने काकीनाडा को ग्रीन हाइड्रोजन वैली ऑफ इंडिया के तौर पर डिक्लेयर किया है। यहाँ से ग्रीन अमोनिया का फर्स्ट प्रोडक्शन 2027 में किया जाएगा। To achieve India's net zero emission target by 2070 and to decarbonize its industrial sector, green hydrogen and green ammonia offer a crucial pathway. 2070 तक इंडिया के नेट जीरो एमिशन टारगेट को अचीव करने के लिए एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर को डीकार्बोनाइज करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया एक क्रूशियल पाथवे ऑफर करता है। इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली बाय 2030। इंडिया ने 2030 तक एनुअली 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करने का टारगेट रखा हुआ है। Achievement of this target could establish India's early leadership in this emerging sector. What is green ammonia? Green ammonia is a carbon-free form of ammonia produced using renewable energy, making it a sustainable alternative for fertilizer, fuel, and energy storage, different from traditional grey ammonia made from fossil fuel. ग्रीन अमोनिया अमोनिया का एक कार्बन फ्री फॉर्म है जिसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का यूज करके प्रोड्यूस किया जाता है। फर्टिलाइजर, फ्यूल एंड एनर्जी स्टोरेज का एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव के तौर पे वर्क करता है। ग्रीन अमोनिया ग्रे अमोनिया से डिफरेंट है बिकॉज ग्रे अमोनिया ट्रेडिशनली फॉसिल फ्यूल के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता रहा है। Green hydrogen is produced using renewable electricity such as solar, wind. To make green ammonia is combined with nitrogen from the air in the Haber-Bosch process. ग्रीन हाइड्रोजन जिसे रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके प्रोड्यूस किया जाता रहा है, इसके प्रोडक्शन के बाद इसमें हाइड्रोजन मिक्स किया जाता है और इस तरह से ग्रीन अमोनिया बनाया जाता है। जिस प्रोसेस के थ्रू ये मेकिंग किया जाता है, दिस इज नोन एज हाबर-बॉश प्रोसेस। दिस प्रोसेस अवॉइड द एमिशन ऑफ CO2 एसोसिएटेड विद कन्वेंशनल मेथड। इस प्रोसेस के थ्रू CO2 एमिशन नहीं होता है। ग्रीन अमोनिया इज क्रूशियल फॉर डीकार्बोनाइजिंग इंडस्ट्रीज एंड अचीविंग नेट जीरो गोल। इंडस्ट्रीज डीकार्बोनाइज करने के लिए, नेट जीरो गोल को अचीव करने के लिए ग्रीन अमोनिया क्रूशियल है। What is green hydrogen? Green hydrogen is a hydrogen which is produced through the electrolysis of water using renewable energy sources like solar, wind, or hydropower. It does not release greenhouse gases during production, making it an environmental friendly fuel. ग्रीन हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन है जो कि वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। इस प्रोसेस में ओनली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस सच एज सोलर, विंड और हाइड्रो पावर का यूज किया जाता है। इस प्रोसेस के थ्रू ग्रीन हाउस गैस रिलीज नहीं होता है। यही वजह है कि ग्रीन हाइड्रोजन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल है। ग्रीन हाइड्रोजन इज अ टेस्टलेस, कलरलेस, odorless, non-toxic and highly combustible gaseous substance. It is the simplest, lightest and most abundant element in the universe. In a green hydrogen, the term green refers to the method of production which involves the use of renewable energy sources like wind, solar or hydel power for electrolysis. ग्रीन हाइड्रोजन का टर्म ग्रीन मेथड ऑफ प्रोडक्शन को रेफर करता है, जो कि शो करता है कि
ओनली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक विंड, सोलर और हाइडल पावर का यूज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसिंग में किया जाता है। Electrolysis process split water into hydrogen and oxygen without emitting greenhouse gases. Electrolysis process में वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है और इस प्रोसेस के ड्यूरिंग ग्रीन हाउस गैसेस एमिट नहीं होता है। हाउ इज ग्रीन हाइड्रोजन डिफरेंट फ्रॉम ग्रे एंड ब्लू हाइड्रोजन? ग्रे एंड ब्लू हाइड्रोजन से ग्रीन हाइड्रोजन किस तरह डिफरेंट है? Grey hydrogen is the produced from fossil fuel like coal or natural gas, releasing greenhouse gases during production. Grey hydrogen uh, fossil fuel such as coal and natural gas से प्रोड्यूस की जाती है और इसके प्रोडक्शन के ड्यूरिंग ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं। ब्लू हाइड्रोजन इज ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बट विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज। ब्लू हाइड्रोजन भी फॉसिल फ्यूल से ही प्रोड्यूस की जाती हैं बट कार्बन कैप्चर इसमें किया जाता है एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी इसमें फॉलो की जाती हैं। इट मीन्स इससे ग्रीन हाउस गैसेस का रिलीज कम होता है। ग्रीन हाइड्रोजन इज द क्लीनेस्ट फॉर्म बिकॉज इट यूजेज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ग्रीन हाइड्रोजन क्लीनेस्ट फॉर्म है बिकॉज इसके प्रोडक्शन में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज किया जाता है। Green hydrogen in India. India has set its target of becoming energy independent by 2047 and achieving net zero by 2070. इंडिया ने 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री बनने का टारगेट रखा हुआ है। 2070 तक इंडिया नेट जीरो एमिशन का टारगेट अचीव करने के लिए यहाँ पर टारगेट रखा हुआ है। To achieve this target, need of using green hydrogen as a renewable energy across all economic spheres is central to India's energy transition. India, India has set target of producing 5 MMT of green hydrogen annually by 2030. Currently, India is on track to meet only 10% of its stated goal. इंडिया ने गोल सेट किया हुआ है कि एनुअली 5 MMT ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करेगा बट इसका अभी 10% ही इंडिया प्रोड्यूस कर पा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन एडवांटेजेस: नंबर 1 एनर्जी स्टोरेज फॉर अ लॉन्ग पीरियड, नंबर 2 फ्लेक्सिबल एनर्जी कैरियर, नंबर 3 मॉनेटरी बेनिफिट, नंबर 4 रिड्यूस्ड एमिशन, नंबर 5 ग्लोबल डोमिनेंस। नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरेज फॉर अ लॉन्ग पीरियड. Green hydrogen can be stored for a long period, which make it suitable for grid stability by providing energy when renewable sources are intermittent. ग्रीन हाइड्रोजन को लॉन्ग पीरियड तक के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है एंड यही वजह है कि ग्रीन हाइड्रोजन सूटेबल है और ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए ये एक इम्पोर्टेंट एनर्जी है। नंबर ऑफ फ्लेक्सिबल एनर्जी कैरियर. Hydrogen can be used for various energy applications such as integrating renewable energy sources, industries and transportation. रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन को इंटीग्रेट करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का यूज किया जा सकता है। नंबर 3 मॉनेटरी बेनिफिट. ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट कैन बी मोनेटाइज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल एप्लीकेशंस. इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरिंग जो बाय प्रोडक्ट इट मीन्स ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस किया जाता है उसको भी मेडिकल एप्लीकेशंस एंड इंडस्ट्रीज में मोनेटाइज करके उसको उससे भी प्रॉफिट टेकिंग किया जा सकता है। नंबर 4 रिड्यूस्ड एमिशंस. अनलाइक ग्रे हाइड्रोजन विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मीथेन, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन डज नॉट रिलीज ग्रीन हाउस गैसेस एंड इट्स बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली वाटर वेपर. ग्रे हाइड्रोजन जो कि मीथेन के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, ग्रीन हाइड्रोजन उससे डिफरेंट है। ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के ड्यूरिंग ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज नहीं होती हैं और बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली वाटर वेपर है। नंबर 5 ग्लोबल डोमिनेंस. Several countries are doing experiment of blending green hydrogen with natural gas for power generation, industrial applications and residential use. Issues and challenges before green hydrogen. ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं इंडिया में, क्या क्या चैलेंजेस हैं. नंबर 1 हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नंबर 2 हाई एनर्जी कंजप्शन,
Number 3, safety concern. Number 4, need to develop infrastructure. Number 6, energy storage. Number 7, dependency on renewable energy sources. Number 8, public acceptance. Number 1, high cost of production. The production of green hydrogen through electrolysis by using renewable energy sources is more expensive, making hydrogen production costlier. Number 2, high energy consumption. Green hydrogen production requires more energy than other fuels. Number 3, safety concern. Hydrogen is highly flammable and volatile. Need extensive safety measures to prevent explosions and leaks. To develop the development of proper safety regulations and protocol is crucial to ensure the safe handling and storage of green hydrogen. Number 4, need to develop infrastructure. For production, storage and distribution of green hydrogen, it requires the development of a robust infrastructure. Number 6, energy storage. The development of effective energy storage solution is important to enable the widespread adoption of green hydrogen. Energy storage solutions like batteries and hydrogen storage can store excess energy and provide a constant supply of green hydrogen. Number 7, dependence on renewable energy sources. Green hydrogen production is dependent on renewable energy sources like solar, wind, and hydropower. These sources are intermittent and their output can fluctuate over time. Number 8, public acceptance. The public acceptance of green hydrogen is necessary to its adoption. The public must be educated about the important benefit of green hydrogen and its role in mitigating climate change. What are India's initiative to promote green hydrogen? ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं? नंबर 1, नेशनल हाइड्रोजन मिशन. नंबर 2, ग्रीन हाइड्रोजन कंजप्शन ऑब्लिगेशन. नंबर 3, ग्रीन हाइड्रोजन हब्स. India has launched several initiatives and policies to promote the production, utilization, and export of green hydrogen. Number 1, National Hydrogen Mission. National Hydrogen Mission was announced in the Union Budget 2021-22, which aimed to make India a global hub for green hydrogen. This mission will facilitate demand creation, research and development, pilot project, skill development, standard and regulation, and policy framework for green hydrogen. Number 2, green hydrogen consumption obligations. The Ministry of New and Renewable Energy has introduced green hydrogen consumption obligation for petroleum refining and fertilizer industry. It is just like the renewable purchase obligation for electricity distribution companies. These obligations will require these industries to consume a certain percentage of green hydrogen in their overall hydrogen consumption. Number 3, green hydrogen hubs. The MNRE has identified regions that can facilitate a large-scale production of green hydrogen and develop them as green hydrogen hubs. ग्रीन हाइड्रोजन एप्लीकेशंस. ग्रीन हाइड्रोजन के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? नंबर 1, वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस. नंबर 2, ट्रांसपोर्टेशन. नंबर 3, एनर्जी स्टोरेज एंड ग्रिड इंटीग्रेशन. नंबर 4, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. नंबर 5, रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशंस. नंबर 6, हाइड्रोजन ब्लेंडिंग. Number 7, hydrogen trade. Number 1, wide range of applications. Green hydrogen has a wide range of applications in various sectors, making it a versatile and valuable resource in the transition toward a carbon neutral and sustainable future. Number 2, transportation. Green hydrogen can fuel cell electric vehicles (FCEVs), which can offer a long driving range and faster refueling times compared to battery electric vehicles. It can also power ships, trains, and aeroplanes, which is a cleaner alternative to traditional fossil fuels. Number 3, energy storage and grid integration. Green hydrogen can also store excess renewable energy from intermittent sources like solar and wind. It can be converted back into electricity when needed, which help to balance the energy grid and ensure energy security. Number 4, industrial applications. In the steel industry, green hydrogen can replace coal-based process, help in reducing emissions. It can also replace fossil fuels used in the production of ammonia. Number 5, residential and commercial application. Green hydrogen can generate electricity for buildings through fuel cell and can be used for cooking and heating, which lead to replacing natural gas and other fossil fuels. Number 6, hydrogen blending.
Green hydrogen can be blended with natural gas and reducing the carbon footprints of natural gas consumption. Number 7. Hydrogen trade. Countries with sufficient renewable energy resources can produce green hydrogen for export. They can create new economic opportunities and strengthening global energy security. This is PYQ related to this. In this session, we will discuss about South China Sea tensions. China expanding influence in South China Sea. Should India be worried? This is the map of South China Sea. Chinese drone made provocative flight over South China Sea, especially in Taiwan-controlled Pratas Island at the top end of the South China Sea. Recently, Chinese drone ने साउथ चाइना सी के ओवर प्रोवोकेटिव फ्लाइट की है, स्पेशली साउथ चाइना सी के टॉप एंड में सिचुएटेड ताइवान कंट्रोल प्रतास आइलैंड पर इसके कुछ प्रोवोकेटिव फ्लाइट्स हुए हैं. इंडिया प्रोवोकेटिव मूव. In the last few years, Maritime East Asia has become an area for intensified political politics. Last few years में ईस्ट एशिया का जो मैरीटाइम रीजन है ये इंटेंसिफाइड पावर पॉलिटिक्स का एरिया बन चुका है. लोकेशन ऑफ ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी. द ईस्ट चाइना सी बॉर्डर चाइना, ताइवान, जापान एंड साउथ कोरिया. ईस्ट चाइना सी मेनली 4 कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है: चाइना, ताइवान, जापान एंड साउथ कोरिया. साउथ चाइना सी लाइज बिटवीन चाइना, ताइवान एंड फाइव साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज: वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया. साउथ चाइना सी वाला जो रीजन है ये मेनली चाइना, ताइवान एंड 5 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है. 5 Southeast Asian countries such as Vietnam, Malaysia, Brunei, Philippines and Indonesia. This region has emerged as one of the most important flashpoints in the Indo-Pacific. Indo-Pacific region में साउथ चाइना सी एक इम्पोर्टेंट फ्लैश पॉइंट के तौर पर इमर्ज हुआ है. हाउ चाइना's assertiveness in eastern and southern China Sea increase. ईस्टर्न चाइना एंड साउथ चाइना सी में चाइना का असर्टिवनेस किस तरह से इंक्रीज हो रहा है. चाइना हैज बीन एग्रेसिवली पुशिंग इट्स क्लेम इन द साउथ चाइना सी. साउथ चाइना सी में चाइना अपने क्लेम को एग्रेसिवली पुश कर रहा है. क्लेम ऑन सेंकाकू डाइव आइलैंड. चाइना असर्ट दैट द सेंकाकू आइलैंड लोकेटेड इन द ईस्ट चाइना सी and under Japanese control belong to Beijing. चाइना असर्ट करता रहा है कि सेंकाकू आइलैंड जो कि ईस्ट चाइना सी में लोकेटेड है और जापान के अंडर में है, बट चाइना इस पर अपना क्लेम कर रहा है. देयर हैव बीन मल्टीपल क्राइसिस ओवर दीज आइलैंड इन द पास्ट. पास्ट में भी इन आइलैंड को लेकर मल्टीपल क्राइसिस चाइना और जापान के बिटवीन हुए हैं. Now Chinese drone made a provocative flight over South China Sea, especially in Taiwan-controlled Pratas Island at the top end of the South China Sea. China built infrastructure and deployed necessary defensive capabilities on the island and reef in the South China Sea, and to conduct patrol in the waters of Diu Island in the East China Sea. ईस्ट चाइना सी रीजन में जितने भी आइलैंड हैं, रीफ्स हैं, चाइना इन आइलैंड पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है. साथ ही नेसेसरी डिफेंसिव कैपेबिलिटी यहाँ पर डिप्लॉय कर रहा है. ऑफेंसिव एंड प्रोवोकेटिव. China's defensive action in these regions are considered offensive and provocative by the regional countries surrounding the East and South China Sea. चाइना जिन एक्शंस को डिफेंसिव एक्शंस कहता रहा है, स्पेशली ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी में, इसके जो प्रोवोकेटिव एक्ट हैं उन सभी प्रोवोकेटिव एक्ट को ये डिफेंसिव एक्ट कहता रहा है, जबकि ये रियल में डिफेंसिव एक्ट नहीं है, ये ऑफेंसिव एक्ट है. China's claim in the South China Sea lack a legal basis according to a permanent court of arbitration ruling in 2016. However, China has rejected that ruling. 2016 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का एक रूलिंग आया
इस रूलिंग के अकॉर्डिंग साउथ चाइना सी में चाइना के जो भी क्लेम है इनका कोई लीगल बेसिस नहीं है, बट इस कोर्ट के रूलिंग को चाइना ने रिजेक्ट किया। ओवरऑल चाइना एम टू ड्राइव अ वेज बिटवीन द यूएस एंड इट्स ट्रेडी पार्टनर इन ईस्ट एशिया। ओवरऑल चाइना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यूएस और यूएस के ईस्ट एशिया में जो ट्रेडी पार्टनर हैं इन सभी के बिटवीन एक वेज क्रिएट करना है। वाई आर द सी इम्पोर्टेंट टू चाइना? चाइना के लिए ये सी इम्पोर्टेंट क्यों है? चाइना व्यू द ईस्ट एंड साउथ चाइना सी थ्रू द प्रिज्म ऑफ सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। चाइना ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी रीजन को सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी का प्रिज्म से सीन करता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ट्रेड रूट, मेजर ग्लोबल ट्रेड पासिंग थ्रू इंक्लूडिंग वाइटल एनर्जी सप्लाईज टू ईस्ट एशिया, ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी ईस्ट एशिया के लिए सप्लाई होने वाली एनर्जी के लिए एक इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट है। ग्लोबल ट्रेड सबसे ज़्यादा इसी रूट के थ्रू होता है। एनर्जी रिसोर्सेज, ईस्ट एंड साउथ चाइना सी होल्ड सिग्निफिकेंट अनटैप्ड ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व। ईस्ट एंड साउथ चाइना सी में एनर्जी रिसोर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। नेचुरल गैस यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिजर्व है। फिशरीज, रिच फिशरीज ग्राउंड सपोर्टिंग द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस एंड प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी। स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, पावर प्रोजेक्शन, by controlling over these waters enhance Chinese regional and global power, enabling military presence। चाइना अगर इस रीजन पर अपना कंट्रोल कर लेता है देन चाइना का रीजनल एंड ग्लोबल पावर एनहांस हो सकता है। मिलिट्री प्रेजेंस यहाँ पर इंश्योर किया जा सकता है। मिलिट्राइजेशन, चाइना हैज बिल्ड मिलिट्री बेसेस एंड एयर स्ट्रिप्स ऑन आर्टिफिशियल आइलैंड इन द पार्सल एंड स्ट्रेटली आइलैंड। चाइना ने इन रीजन में कुछ आर्टिफिशियल आइलैंड सच एज पार्सल एंड स्ट्रेटली आइलैंड यहाँ पर इस्टेब्लिश किए हुए हैं। इन आइलैंड पर चाइना ने मिलिट्री बेसिस एंड एयर स्ट्रिप्स यहाँ पर बिल्ड कर रखे हैं। 9 लाइन, China's historical claim over most of the South China Sea contested by other nations and international law। 9 लाइन के थ्रू चाइना ने मोस्ट ऑफ द साउथ चाइना सी एरिया पर अपना हिस्टोरिकल क्लेम किया है और इस क्लेम की वजह से सभी रीजनल कंट्रीज और चाइना के बिटवीन टाइम टू टाइम कंटेस्ट होता रहता है। इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड यहाँ पर कुछ इश्यूज क्रिएट होते हैं। डिजिटल इकोनॉमी की अंडर से केबल इन द ताइवान स्टेट सपोर्ट द ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी। ताइवान स्टेट में अंडर से केबल है जो कि ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द साउथ चाइना सी? साउथ चाइना सी का क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर 1, की मैरीटाइम ट्रेड रूट। द की मैरीटाइम ट्रेड रूट इन ईस्ट एशिया पास थ्रू ईस्टर्न चाइना एंड साउथ चाइना सी। ईस्ट एशिया रीजन का ये एक की मैरीटाइम ट्रेड रूट है जो कि रीजन के थ्रू पास होता है। नंबर 2, द रीजन इज होम टू अंडरसी केबल्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर द ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी। ईस्ट एंड साउथ चाइना सी अंडरसी केबल के लिए एक इम्पोर्टेंट होम है जो कि ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, की एनर्जी सप्लाई रूट। एनर्जी सप्लाई के लिए ये एक इम्पोर्टेंट रूट है। एज पर द यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन इन 2023 10 बिलियन बैरल ऑफ पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड 6.7 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस पास्ड थ्रू द साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी के थ्रू एनर्जी का बहुत ज़्यादा सप्लाई होता है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग 2023 में इस रीजन के थ्रू अबाउट 10 बिलियन बैरल पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट यहाँ से ट्रांसफ़र किए गए। 6.7 ट्रिलियन क्यूबिक फीट लिक्विफाइड नेचुरल गैस इस एरिया के थ्रू पास किया गया। नंबर 1, रिजर्व ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस। इट इज ऑल्सो होम टू वास्ट रिजर्व ऑफ अनटैप्ड ऑयल एंड नेचुरल गैस।
ईस्ट एंड साउथ चाइना सी के अंदर ऑयल एंड नेचुरल गैस का बहुत वास्ट रिजर्व है। व्हाट इज चाइना डूइंग इन द रीजन? ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी रीजन में चाइना प्रेजेंट में क्या एक्ट कर रहा है? China has been aggressively pushing its territorial claim in both seas in two ways. चाइना बहुत सीज के अंदर अपना टेरिटोरियल क्लेम एग्रेसिवली पुशिंग कर रहा है, स्पेशली टू वेज में ये इस क्लेम को पुशिंग कर रहा है। नंबर वन, बाय बिल्डिंग डिफेंस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज पोर्ट, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, एयर स्ट्रिप्स एंड आर्टिफिशियल आइलैंड। एंड नंबर टू, बाय पुशिंग बैक अगेंस्ट द क्लेम ऑफ रीजनल कंट्रीज। चाइना टू टाइप से अपने क्लेम को यहाँ पर पुशिंग कर रहा है। फर्स्ट वो आर्टिफिशियल आइलैंड यहाँ पर सेटअप करके डिफेंस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बिल्ड कर रहा है, सच एज पोर्ट्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशन, एयर स्ट्रिप्स यहाँ पर बिल्ड कर रहा है। सेकंड, जितने भी रीजनल कंट्रीज हैं उन रीजनल कंट्रीज के क्लेम के अगेंस्ट चाइना यहाँ पर पुशिंग बैक कर रहा है। इन द ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी में चाइना के क्या क्या एक्ट हैं? China and Japan, both countries, face multiple crises, which increased by the arrest of a Chinese captain of a fishing boat in 2010 and Japan's nationalization of the Senkaku Island in 2012. ईस्ट चाइना सी रीजन के अंदर जो क्लैसेस हैं मेनली चाइना एंड जापान के बिटवीन हैं, और ये क्लैसेस 2012 एंड 2010 के इंसिडेंट के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 2010 में जापान ने एक चाइनीज कैप्टन को अरेस्ट किया एंड 2012 में जापान ने सेंकाकू आइलैंड का नेशनलाइजेशन किया। इसके बाद चाइना एंड जापान के बिटवीन क्लैशेस इंक्रीज हुए हैं। बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स, आफ्टर दिस चाइना हैड इम्पोर्ट अ बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स टू जापान। 2012 और 10 के इंसिडेंट के बाद चाइना ने जापान के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सपोर्ट बैन किया। डिटोरेटेड रिलेशंस, ड्यू टू चाइना's assertive foreign policy, its relationship with South Korea, Taiwan and Japan has deteriorated rapidly. ईस्ट चाइना सी के अंदर चाइना की असर्टिव फॉरेन पॉलिसी की वजह से चाइना के साउथ कोरिया के साथ, ताइवान एंड जापान के साथ रिलेशन डिटोरिएटेड हुए हैं। In South China Sea, the power asymmetry between China and the South China Sea claimant countries is large and is growing continuously. South China Sea region में चाइना एंड साउथ चाइना सी क्लेमिनेंट अदर कंट्रीज के बिटवीन पावर असिमेट्री यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। एवर ग्रोइंग प्रोजेक्शन ऑफ चाइनीज पावर, China's navy is also the largest naval force in the world by numbers. Therefore, the South China Sea is seeing the ever-growing projection of Chinese power. चाइना की नेवी नंबर रिस्पेक्ट में लार्जेस्ट नवल फोर्स है वर्ल्ड में। यही वजह है कि चाइना का साउथ चाइना सी में एवर ग्रोइंग प्रोजेक्शंस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। डिप्लॉयमेंट ऑफ कोस्ट गार्ड एंड मैरीटाइम मिलिटिया, For asserting its claim, China has deployed a coast guard and maritime militia. साउथ चाइना सी में अपने क्लेम को असर्ट करने के लिए चाइना ने कोस्ट गार्ड एंड मैरीटाइम मिलिटिया डिप्लॉय कर रखे हैं। ग्रे जोन ऑपरेशन ऑफ चाइना, डेंजरस एंड अग्रेसिव मैनोवर एट सी। द टैक्टिक्स इंक्लूड डेंजरस एंड अग्रेसिव मैनोवर एट सी, harassing supply missions, ramming vessels, collisions and using water cannons and military grade lasers etc. चाइना के ग्रे जोन ऑपरेशंस के अंडर कुछ एग्रेसिव एंड डेंजरस इसके कुछ एक्ट इसके अंदर इंक्लूड है। स्पेशली सप्लाई मिशंस को हरास करना, वेजल्स को रैमिंग करना, कॉलिजन्स, वाटर कैनन का यूज करना, ये सब ग्रे जोन ऑपरेशंस का पार्ट रहे हैं। Designed to alter the status quo in the South China Sea. These tactics are known as grey zone operation, which are designed to alter the status quo in South China Sea.
साउथ चाइना सी के स्टेटस को अल्टर करने के लिए चाइना डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्टिक्स यहाँ पर फॉलो कर रहा है। टैक्टिक्स विच आर नोन एज ग्रे जोन ऑपरेशन। चाइना क्लैशेस विद फिलीपींस। साउथ चाइना सी रीजन में चाइना के फिलीपींस के साथ भी कुछ क्लैशेस हैं। क्लेम्स इन EEZ of Philippines. China has been actively pushing its claim in the exclusive economic zone of Philippines. फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी चाइना ने कुछ क्लेम पुश किए हैं। राइजिंग टेंशन बिटवीन चाइना एंड द फिलीपींस सिंस 2022. Tension between China and the Philippines have been rising due to a significant increase in the frequency of such incidents. Chinese coast guard ships are considerably heavier and larger in terms of tonnage compared with coast guard vessels of other countries. चाइना के कोस्ट गार्ड शिप अदर कंट्रीज के कंपेयर में हैवियर है, लार्जर है। Hence, China's frequent ramming of the Philippines vessel is dangerous and risky. यही वजह है कि चाइना के फिलीपींस के वेजल को फ्रिक्वेंट रैमिंग किया जाता है, जो कि एक डेंजरस एंड रिस्की एक्ट है। चाइना क्लोजनेस विद रसिया। लास्ट कुछ ईयर में चाइना का रसिया के साथ क्लोजनेस इंक्रीज हुआ है। China conducted naval exercise with Russia in the South China Sea to demonstrate the support that it enjoy over it while projecting its claim. चाइना ने रसिया के साथ साउथ चाइना सी में एक नवल एक्सरसाइज में कंडक्ट किया सो दैट वो अपने इस क्लेम को स्ट्रॉन्ग कर सके। ओवरऑल चाइना एम्स टू ड्राइव अ वेज बिटवीन द US एंड इट्स ट्रेडिंग पार्टनर इन एशिया, ईस्ट एशिया। ओवरऑल चाइना का जो मेन एम है वो US के ईस्ट एशिया में जो ट्रेडिंग पार्टनर है, US और इन ट्रेडिंग पार्टनर के बिटवीन एक वेज इस्टेब्लिश करना है। रिस्पॉन्स फ्रॉम रीजनल कंट्री टू कंट्रोल ग्रोइंग डोमिनेंस ऑफ चाइना इन ईस्ट एंड साउथ चाइना सी। चाइना ईस्ट चाइना एंड साउथ चाइना सी में चाइना के ग्रोइंग डोमिनेंस को कंट्रोल करने के लिए रीजनल कंट्रीज का क्या रिस्पॉन्स है। The regional countries have responded in 3 ways. First, they are building their defense capabilities. रीजनल कंट्री अपना डिफेंस कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहे हैं। सेकंड, रीजनल कंट्रीज आर रिस्पॉन्डिंग टू चाइना एक्टिविटीज एट सी। ईस्ट एंड साउथ चाइना सी में चाइना की जो भी एक्टिविटीज हैं, रीजनल कंट्रीज अब उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। थर्ड, द फिलीपींस, जापान एंड साउथ कोरिया आर स्ट्रेंथनिंग देयर डिफेंस रिलेशनशिप विद US। फिलीपींस, जापान एंड साउथ कोरिया, ये सभी कंट्रीज अब US के साथ अपने डिफेंस रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। फर्स्ट, दे आर बिल्डिंग देयर डिफेंस कैपेबिलिटीज। डिफेंस स्पेंडिंग हैज इंक्रीज्ड अक्रॉस द इंडो पैसिफिक। फॉर एग्जांपल, बाय 2027 जापान वांट्स टू डबल इट्स डिफेंस एक्सपेंडिचर। इंडो पैसिफिक रीजन में डिफेंस स्पेंडिंग को अब इंक्रीज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल 2027 तक जापान ने टारगेट रखा हुआ है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर को डबल किया जाएगा। द फिलीपींस टू इज इंक्रीजिंग इट्स डिफेंस कैपेबिलिटीज एंड हैज एक्वायर्ड द एंटी-शिप ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम इंडिया। फिलीपींस भी अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर रहा है। इसके लिए फिलीपींस ने इंडिया से एंटी-शिप ब्रह्मोस मिसाइल एक्वायर की है। Second, regional countries are responding to China's activities at sea, deploying tools such as public diplomacy. Regional countries are engaged in a battle of narrative. They are deploying tools such as public diplomacy. रीजनल कंट्रीज अब बैटल ऑफ नैरेटिव्स के साथ इंगेज हुए हैं और कुछ इम्पोर्टेंट टूल इन्होंने भी अब डिप्लॉय किए हैं, सच एज पब्लिक डिप्लोमेसी। Philippines has been pushing back and publishing China's incident. फिलीपींस चाइना के सभी इंसिडेंट को अब पुशिंग बैक कर रहा है, पब्लिसाइजिंग कर रहा है। द फिलीपींस हैज बीन फिल्मिंग द बिहेवियर ऑफ चाइनीज वेजर एंड इज रिलीजिंग इट थ्रू सोशल मीडिया। फिलीपींस चाइनीज वेजर के बिहेवियर को अब फिल्मिंग करता है और उसको सोशल मीडिया पर रिलीज करता है। द फिलीपींस हैज ऑल्सो टेकन इंटरनेशनल जर्नलिस्ट अलॉन्ग विद इट्स रीसप्लाई मिशंस इन द वेस्ट फिलीपींस सी। फिलीपींस ने अब
इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को भी यहाँ पर टेकन किया है, सो दैट चाइना के बैड एक्ट को पब्लिसाइज किया जा सके इंटरनेशनली। द शेपिंग ऑफ परसेप्शन हैज बिकम अ की बैटल ग्राउंड। थर्ड, द फिलीपींस, जापान एंड साउथ कोरिया आर स्ट्रेंथनिंग their defense relationship with US. The US and Philippines have enhanced their cooperation in the South China Sea to historical level and expanded cooperation in domains such as base access, training and joint exercise. यूएस और फिलीपींस ने साउथ चाइना रीजन में अपने कॉपरेशन को एनहांस किया है एंड बेस एक्सेस ट्रेनिंग एंड जॉइंट एक्सरसाइज डोमेन में अपने जो कॉपरेशन है उसको एक्सपेंड किया है। स्क्वाड both are working with Australia and Japan in a complex multilateral maritime cooperative activity. It is known as Squad. यूएस एंड फिलीपींस दोनों ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ एक कॉम्प्लेक्स मल्टीलेटरल मैरिटाइम कोऑपरेटिव एक्टिविटी के लिए वर्किंग कर रहे हैं, जिसको स्क्वाड के नाम से भी जाना जाता है। इट मीन स्क्वाड के अंदर ये 4 कंट्रीज का कोऑपरेशन है, यूएस, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। The US, Japan, and South Korea are deepening their trilateral cooperation. ईस्ट चाइना सी में कॉपरेशन को स्ट्रेंथ करने के लिए जापान एंड साउथ कोरिया ने यूएस के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है और एक ट्राइलेटरल कॉपरेशन यहाँ पर मेकिंग करते हैं। In view of aggressive Chinese maritime activities, these three countries strongly oppose any unilateral attempt to change the status quo in the water of the Indo-Pacific. They also stress the importance of fully respecting international law, including the freedom of navigation and overflight. ये सभी कंट्रीज चाहते हैं कि ईस्ट चाइना से और साउथ चाइना से रीजन में इंटरनेशनल लॉ का रिस्पेक्ट किया जाए एंड नेविगेशन एंड ओवर फ्लाइट का यहाँ पर सभी को फ्रीडम गिवन किया जाए। व्हाट इज पैक्स सिलिका इनिशिएटिव? व्हाई इंडिया वांट्स टू ज्वाइन पैक्स सिलिका ग्रुप? व्हाई न्यूज? ऑन January 12, 2026, the newly appointed US ambassador to India announced that India will be invited to join PAX Silica initiative as a full member next month. इंडिया के लिए न्यू अपॉइंटेड किए गए यूएस एम्बेसडर ने अनाउंस किया है कि इंडिया को पैक्स सिलिका इनिशिएटिव को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया जाएगा और इसका फुल मेंबर बनाने के लिए यहाँ पर इनिशिएटिव टेकिंग किए जाएंगे। दिस फॉलो इंडिया इनिशियल एक्सक्लूजन फ्रॉम द ग्रुप्स लॉन्च इन दिसंबर 2025। दिसंबर 2025 में इस ग्रुप को लॉन्च किया गया, बट इंडिया ने इनिशियली इससे अपने आप को एक्सक्लूड किया। ओवरव्यू ऑफ पैक्स सिलिका लॉन्च बाय द यूएस। पैक्स सिलिका इनिशिएटिव यूएस के द्वारा लॉन्च किया गया, बट इसके की पॉइंट्स क्या क्या है? पैक्स सिलिका इज अ स्ट्रेटेजिक कोalition एम्ड एट सिक्योरिंग द ग्लोबल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन। पैक्स सिलिका एक स्ट्रेटेजिक कोalition है कुछ कंट्रीज का, जिसका मेन एम ग्लोबल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन को सिक्योर करना है। कोर ऑब्जेक्टिव to build a secure, resilient, and innovation-driven supply chain for semiconductors, artificial intelligence, and critical minerals. सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल मिनरल्स का सिक्योर, रिसिलिएंट एंड इनोवेशन ड्राइवन सप्लाई चेन को इंश्योर करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। स्ट्रेटेजिक गोल टू रिड्यूस कोर्स ऑफ डिपेंडेंसीज, स्पेशली लोअरिंग ग्लोबल रिलायंस ऑन चाइना फॉर रेयर अर्थ प्रोसेसिंग एंड हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग। बिकॉज वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज का रेयर अर्थ प्रोसेसिंग एंड हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना पर रिलायंस बहुत ज़्यादा है। इस ग्लोबल रिलायंस को लोअर करना पैक्स सिलिका इनिशिएटिव का मेन एम है। करंट मेंबर इंक्लूड द यूएस, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड एंड यूके, इजराइल, यूएई, ऑस्ट्रेलिया। ये सब पैक्स सिलिका इनिशिएटिव के मेंबर्स हैं। की फोकस एरियाज: मिनरल रिफाइनिंग, सेमीकंडक्टर डिजाइन एंड फैब्रिकेशन, energy grid for AI, and trusted digital infrastructure like fiber optics cable and data centers। ये इसके कुछ की एरियाज हैं। रेलेवेंस ऑफ पैक्स सिलिका इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए पैक्स सिलिका इनिशिएटिव का क्या इंपॉर्टेंस है? बायलैटरल टाइज,
indicate a softening of tensions in India-US trade and strategic relations. Global groupings represent the emergence of high-trust small coalitions to govern emerging technology and national security. साइंस टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी जीएस 3 के लिए ये इम्पोर्टेंट है. सेमीकंडक्टर मिशन अलाइन विद इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन टू टर्न इंडिया इनटू अ ग्लोबल हब फॉर चिप मैन्युफैक्चरिंग. इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन में ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. सप्लाई चेन रिसिलियंस complement India's existing role in the mineral security partnership and efforts to diversify rare earth import, currently 90% dependent on China. करंट में इंडिया को रेयर अर्थ इंपोर्ट के लिए 90% तक चाइना पर डिपेंड होना पड़ रहा है. इसको शिफ्ट करने के लिए भी ये इनिशिएटिव इम्पोर्टेंट है. AI इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्ट टू मैसिव प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट सच एज माइक्रोसॉफ्ट $17.5 billion commitment to Indian AI infrastructure announced in December 2025. So thanks for watching this video.